question, nothing for now. Clear, all right. तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ आपसे। क्या आप सुन सकते हैं मुझे? हाँ, yes. मुझे ये पूछना था कि आप जो पैशन फाइंड करने में कैसे मदद करते हैं? फिर से पूछे। How do you help people by finding their why? Why? अच्छा, आपके पैशन फाइंड करने में हम कैसे हेल्प कर सकते हैं? ओके, करेक्ट। ये डिपेंड करता है सर कि आप अभी क्या सोच रहे हो और क्यों सोच रहे हो। महापात्रा साहब। हाँ जी, एक्चुअली वो वाई के बारे में मैं सोच रहा हूँ। वाई मतलब मैं जैसे आप बोल रहे हो ना, if you are doing anything but you must know your purpose. Without knowing the purpose and direction, no one can grow. So my basic question is, purpose means why. That means why I'm born or why I wake up every day. Because sir, before coming to this session, I can say I'm a great. I read a lot of books. That is one of the basic thing that is available with me. I read a lot of books like. Also, I have read Bhagavad Gita and Power of Subconscious Mind, Think and Grow Rich. All those books of Brian Tracy. But here, after coming here, I found that there is something unique in your style of representation, and there is something in you also. So my question is exactly the same. Will you help me find my why? See, this why is a very deep thing, but अगर मैं इसे एक sentence में cover करूँ, so it will be like, बस, you know what, just be integrated with yourself. Your why will find you. Your purpose will find you. The problem today is that you are not integrated with yourself. This is the problem. Okay? And that is why you are searching here and there, what is my purpose, what is my purpose. See, people waste a lot of their time in just doing this only, finding their why. They don't understand a single thing. If they just be with themselves, just be in the implementation and execution process, just be in the action mode, and the why will find you. The why is going to find you. Okay? आप बोलो महापात्रा बाबू, आप बोलो। अब बच्ची ने आपको जवाब दे दिया, अब आप समझ लो। No, actually, she told don't procrastinate. Just do. Just take action and be yourself, and the universe will find your why you are here. Right? Okay. Thank you, Vardhana. क्लियर है ना महापात्रा बाबू कि एक बच्चे में वो बात है जो आपका बात को समझना, उसके बाद फिर उसको वहां तक। No, she is actually giving the answer from very root level, and I'm quite impressed. Really good. बहुत अच्छे। और कुछ सवाल पूछिए। In management we are told just to ask our means we must be clear about our why, what, and how those W questions. That must be clear. So I thought this question will be more applicable there, and no more questions. And whatever I have to do. आपके लिए जिम्मेवारी है यहाँ पे, क्योंकि अपने मेंटर को अगर मान लो आपको कुछ इंप्रेसिव लग रहा है ना, तो उसके लिए ग्रेटिट्यूड होना चाहिए। हमारा जो 3 दिन का प्रोग्राम है ना, उसको आपको अटेंड करना ही चाहिए, क्योंकि वहां पर हम बहुत जबरदस्त ऐसा कुछ कर रहे हैं कि मतलब आपका सारा एक्सपीरियंस, आपका एज का जितना भी अभी तक का निचोड़ है ना, वो सारा फिर से रिकंस्ट्रक्ट होने वाला है। वो आपने इस 2 घंटे में, ठीक है ना, तो वो बहुत जरूरी है। अगर वो कर लेते हो तो फिर मुझे नहीं लगता है कि फिर कोई सवाल बचेगा आपके पास, और उसके बाद फिर ऐसा लगेगा कि कोई डाउट है लाइफ में, कहीं पर भी कुछ हडल्स है। I am writing a book also and it is going to be published on 8th of March. वो एक बात है जो पहुंच रही है अपनी जगह, लेकिन अभी जब आप हमारे थ्रू आ रहे हो ना, तो आप अपने आप में एक नया चीज पाओगे। हम जिस तरह से छेनी मारतुल मारते हैं ना, वी आर नॉट मेकिंग अ कंकर, वी आर मेकिंग अ संकर। I agree. तो ऑटोमेटिकली जो है ना, कुछ अलग टाइप का तांडव होता है यहाँ पे, है ना। तो बहुत कुछ है, मतलब एक स्पिरिचुअल, यानी कि यहाँ पे भी मैं 1 घंटा 1.5 घंटा रहा, तो मुझे लगा कि कोई एक अलग टाइप का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, जैसे कि लाइक बॉडी में कुछ अलग वाइब्रेशन ही आ रहा है, कुछ स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन जैसा लगता है।
अच्छा शुभ वरदान लगा। में क्या बोला, शुभ वरदान जो है ना, मतलब शुभ वरदान है, एग्जैक्टली शुभ वरदान है, क्योंकि शुभ वरदान मेरे पास क्यों आ गया, आई एम तो एक सिंपल गाय, डेली कमाए खाए डेली खाए, लेकिन शुभ वरदान मेरे घर पे जन्म लिया, मतलब कुछ तो पर्पस होगा ना, मेरे पास जो माइंड पावर है, जो मेरी वाइफ के पास माइंड पावर है, अब बच्चे आए हैं तो वो कुछ ना कुछ तो परछाई है, लेकिन उसके बावजूद जो मैं अमालगमेट कर पाया, क्योंकि इतने सारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री ऐसा है ना कि आपको बहुत सारे तरह के लोगों से मिलना पड़ता है, बातें करनी पड़ती है, उनको टैकल करना पड़ता है। मैं एकदम गरीब से गरीब तबके के पास भी गया हूँ, और मैं सबसे मजिस्ट्रेट, एडीएम, मंत्रालय, सचिवालय, ठीक है ना, उसके पीए, उसके उन सब के साथ भी मैंने डील करा है। बहुत सारे बैंकर्स हैं जो जिनका फंड्स मैं मैनेज करता हूँ, वो खुद दूसरों का फंड्स के लिए उनको एडवाइस करते हैं, बट उनका अकाउंट मेरे पास है, मैं उनको ऑपरेट करता हूँ। बहुत सारे व्हाइट और ब्लैक मनी है जिसको मैंने बोलना नहीं चाहिए, लेकिन कैसे एटीसी करना है, कैसे कहाँ करना है ना, क्योंकि मैं कॉमर्स बेस्ड रहा हूँ, तो इनकम टैक्स प्रैक्टिशनर भी रहा हूँ, उस लहजे से मुझे पता रहा है कि आप अभी मैं जब आपको यहाँ पर प्लेटफॉर्म देता हूँ, तब भी मैं बताता हूँ कि आपके करोड़ों रुपए का प्रॉफिट को कैसे आप अरेंज कर दोगे, तो वो उसका मैक्सिमम पार्ट आपका होगा, टैक्सेशन वाला पार्ट जो है ना सेफ हो जाएगा। क्योंकि मेरा काम ही यही है कि मैं कैसे आपका टैक्स सेव करूं एज ए एम्प्लॉय, कैसे टैक्स सेव करूं एज ए बिजनेस ओनर, तो मैं तो इसमें एक्सपर्टीज रखता ही हूँ। तो ये सब चीज आपको हर वक्त मिलेगा कि कैसे आप अपने पैसे का ऑपरेशन, कैसे चैरिटी, कैसे जर्नल करो, कैसे आप उसको हर चीज अरेंज करो, किस तरह से पहले देखा जाना चाहिए, किस तरह से बाद में देखा जाना चाहिए। हमारे काम ही यही है कि हम आपको वो चीज हाथ में दें जिसके लिए आप बाजार में माथा लगा रहे हो, किसी न किसी एक प्रोफेशनल को खोज रहे हो कि वो आपकी मदद करता। तो जब हमारे सिस्टम में आते हो तो सिस्टम खड़ा करने से पहले हम बताते हैं कि आपका इतना बजट है क्या, अगर ये बजट है तब आप सोचो, नहीं तो पहले ये बजट अरेंज कर लो। और अरेंज करने के लिए भी प्लेटफॉर्म देते हैं कि चलो कोई दिक्कत नहीं, अगर आप यहाँ पर पढ़ रहे हो तो पढ़ते पढ़ते ऐसा करो कि 2-4 स्टूडेंट अरेंज कर लो, उससे भी आपकी कमाई हो जानी है। तो ऐसे करके हमने हर एक चीज दे दिया है कि आप हमारे पार्टनर प्रोग्राम में आ जाओ, पार्टनर प्रोग्राम में आ गए तो वहां से भी 2 पैसे आपके आ जाएंगे, तो आपका कॉन्सेंट्रेशन डाइवर्ट नहीं होगा, आपको जो लर्निंग है वो खाली सोशल मीडिया पे डाल दो, लोग उसी से अवेयर हो जाएंगे कि मैं तो आज ये लर्न कर लिया, मैं तो आज ये जान गया, आपने क्या जाना। जैसे मान लो अभी आपकी पात्रा बाबू कि आपने ही बोला, जो भी बातें बोली कि मैंने तो आज ये 1.5 घंटे में मैंने किया, मुझे लगा यूनिक, मैंने इतने सारे बुक्स फॉलो करे हैं, बावजूद इसके कि मैं जो यहाँ बैठा हूँ तो इस 1.5 घंटे में मुझे कुछ अलग सब्जेक्ट मैंने उठाया, यहाँ से अलग नगेट्स उठाए मैंने यहाँ से, तो ऑटोमेटिकली ये बात मैं तो जान गया। आपकी क्या हाल है, नहीं तो जाओ superdan.com जाओ, खत्म कहानी, नीचे आपका लिंक छोड़ दिया। तो यही अपने आप में आपका मार्केटिंग भी हो गया, आपकी ब्रांडिंग भी हो गई। क्योंकि अभी आप कुछ भी कर लो, अलग बात है कि जिसका प्रोफेशन है उसने आपको सिखाया होगा कि भाई आपने बुक लिखना है, आपने ऐसे करना है, लेकिन आप खुद अपने दिल पे ऐसे हाथ रख के सोचो कि आपके 1,00,000 बुक लिख लेने से क्या होगा जब उसको ऑडियंस नहीं मिलेगा। आपको एक बहुत बड़ा, क्योंकि जो ऑडियंस है वही आपको बनाती भी है और बिगाड़ती भी है, तो आपको ऑडियंस चाहिए वो जो आपको हर वक्त मतलब जो है ना, बोलते हैं कि अभी आप अगर जॉब करते हो तो आपको समझना होगा कि आपका सीनियर और आपका जूनियर दो है, और एक आपके बगल में आपका कलीग है। ये 3 लोग जो है ना, जो मैं बोला पहले भी ट्रायंगल काम करता है, ये तीनों आपको पसंद करने चाहिए अगर आपको ग्रोथ लेना है। तो आप क्या बोलते हो? आपका कलीग, आपका जूनियर, आपका सबऑर्डिनेट और आपका सीनियर, ये तीनों आपको पसंद करना चाहिए अगर आपको वाकई में ग्रो करना है तो। You said कि you read Brian Tracy's book, so he said कि the more the people with you, above you and below you like you, the more money you will make. लीजिए, राइटर का नाम भी बता दिया आपको। अगर इफ यू फॉलो ब्रायन ट्रेसी देन यू नो कौन से चैप्टर पे ये पैराग्राफ लिखा हुआ है। तो मैं क्या बोला यहाँ पे कि टाइम डजंट मैटर, मैटर इज योर फोकस, हाउ मच फोकस्ड। एंड तो हमने वो जो किया है ना, हमारे पास 1300-1400 किताबों का एक जत्था है, 1400 बुक्स जो हमने थॉरो कर लिए हैं। और ऐसा नहीं है कि मतलब थॉरो एक बार किया है, एक बुक को हमने कई 100 बार भी देखा है, जिसमें है वो बात, जिसमें वो मैग्नेट है। सारे बुक्स में मैग्नेट नहीं है, क्योंकि बुक्स मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि बुक्स हैं, बुक्स इसलिए क्योंकि ऑथर को हम जानते हैं, ऑथर की फिलॉसफी को जानते हैं, ऑथर का आर्ट ऑफ बिहेवियर को जानते हैं कि वो अगर लिखेगा इस बारे में तो क्या लिखेगा। तो आशुतोष भाई, आपको भी समझना होगा अपना मार्केट। हर एक आदमी को आप रेजोनेट नहीं कर सकते हो, आप कुछ लोगों को ही रेजोनेट कर सकते हो जो आपके जैसे होंगे। पीपल कनेक्ट विद द पीपल, और बात खत्म हो गया। आपका प्रोडक्ट हीरा हो या खीरा हो, मैटर नहीं करता है। अगर उसने आपको पसंद कर लिया, मतलब आपके द्वारा जो अवेलेबल है ना, वो उसको ही पसंद कर लेगा। आपकी गाली भी उसे अच्छी लगेगी, आपकी प्यार मोहब्बत वाली बातें भी उसे अच्छी लगेगी। तो आपको बनाना है अपना, तो अपना बनाने के लिए आपका ब्रांड बहुत मैटर करता है। जब आप अपनी ब्रांडिंग पे काम करते हो तो हम बताते हैं ब्रांडिंग में काम कैसे किया जाता है। इतनी देर में आपने जो जाना ना, वो अपने आप को रिडिफाइन, एक छोटा सा मेकओवर जाना अपने बारे में। इस 1.5 घंटे 2 घंटे में आपने अपना सिर्फ मेकओवर ही तो देखा है।
हर एक बात जो है ना अपने ऊपर आपने बार बार देखा लगा करके कि मैं कितना हैंडसम दिख रहा हूँ, कितना बेस्ट वर्जन दिख रहा हूँ अपना। तो जब आप आपको अपना बेस्ट वर्जन दिखाई देने लगता है मतलब बस मामला फिट है। आपको चाहिए तो यही यहाँ खुशी, आपको चाहिए यहाँ खुशी और अपने चारों तरफ खुशहाली। अल्टीमेट गोल सबका वही है कि मैं यहां से खुश रहूं और मेरे चारों तरफ खुशहाली रहे। खत्म बात। अगर मैं ये चीज आपके अंदर डाल रहा हूं मतलब बात पूरा हो गया। ठीक है, सही है। आपके साथ लॉन्ग टर्म एसोसिएशन बहुत मतलब that will be of great benefit I think and I was searching for such kind of thing. अभी तो कुछ नहीं है सर, अभी तो सागर से गागर भी नहीं भरा आपने, अभी तो सागर से गागर भी नहीं भरा है। हमने तो करीबन 10,000 से प्लस घंटे का कंटेंट वैसा बनाया है ना जो टोटली यूनिक है, तो टोटली यूनिक है। मतलब चाहे वो ब्रायन ट्रेसी, टॉनी रॉबिन्स, टी हार्व बेकर की बात कर लो, चाहे गौतम बुद्ध और कबीर रहीम, नानक और किसी की बात कर लो, मैंने चाहे भगवत गीता की बात कर लो, हर एक जगह में कुछ गैप्स थे। हर गैप्स को हमने पहले फाइंड किया है और उसका जो बेस्ट हो सकता है वो हमने खड़ा किया है। और उसके बाद SIMT जो हमारा बोलता है टी, करेंट टाइम टूल एंड टेक्नोलॉजी, यानी 2022 में वो काम कैसे आएगा आपका, उसका अरेंजमेंट किया है। 2023 में आपको कैसे वो करोड़पति बना देगा, उसका अरेंजमेंट किया है। 2025 में कैसे आपका ब्रांड इकोसिस्टम काम करेगा, पीपल विल कनेक्ट यू। जैसे एक डॉक्टर के साथ कनेक्शन बनता है, एक अल्ट्रासाउंड वाला, एक ECG वाला, एक पैथोलॉजिशियन, एक मेडिसिन वाला, ठीक है ना। एक डॉक्टर उसको सब मर्ज करते आके, MR हमेशा उसके क्लिनिक के बाहर बैठा रहता है, सर मेरी कंपनी का दवाई रेकमेंड कर दो, ठीक है ना। तो दैट इकोसिस्टम हाउ यू क्रिएट, तो ये वाला बात है। तो कैसे पहले साल में आप ये कर जाओ, दूसरे साल में वो कर जाओ, तीसरे साल में आपका ब्रांड इकोसिस्टम काम करने लगे। अभी आप एक एरिया में हो, पूरा मल्टीपल एरिया में आपके फ्रेंचाइज हो जाए, हम इसकी बात करते हैं। कैसे 3 से 4 साल में आपका जो है ना, बोलते हैं ना तूती बोलेगा, हाउ यू बिकम द तुरुप का पत्ता कैसे आपकी ब्रांड की तूती बोलेगी, इसकी अरेंजमेंट हम करते हैं यहाँ बैठे बैठे। हम बताएंगे कि वो फिलॉसफी क्या है जो रन करेगा, वो कौन सी ऐसी बात है ना जो आप पे सूट करती है और लोग आपको इनकैश कर लेंगे फटाक से, वो हम आपको बताएंगे। मेरा गहरा नजर, जैसे अभी आपने मुझे भी सुना, मेरी बेटी को भी सुना, हमारा नजर जब आप पे पड़ेगा बाय डिफॉल्ट, तो हम आपके अंदर का वो जो है ना, बोलते हैं ना, बचपन से आपने सुना होगा कि जिस दिन तू अपना इनर क्वालिटी समझ जाएगा ना, उस दिन तेरे को तरक्की करने से कोई नहीं रोकेगा। जब मैं आपके अंदर हाथ डालता हूं ना, तो वो क्वालिटी निकाल के आपके तरहत्ती पे रख देता हूं ऐसे। तब ये आप जो अभी 4-5 बार चाय पियो ना, कभी पियोगे ही नहीं। इस 1.5-2 घंटे में मैंने देखा 5 कप चाय पीते देख लिया, वो आप पियोगे ही नहीं। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगी कि आप जो बोल रहे हो, लर्न करो फिर अनलर्न करो, फिर नई चीज लर्न करो, फिर उसको इम्प्लीमेंट करो और तुरंत इम्प्लीमेंट करो, मतलब टेक एक्शन क्विकली सो दैट यू विल ग्रो। तो क्या होता है, कुछ चीजें जैसे मैं भी मानता हूँ कि मेरे में भी कुछ है, आई नो माई नेगेटिव पॉइंट्स। Sometimes I feel I have a procrastination. It is coming by default. And another thing is, if I'm trying to implement, where shall I implement? I'm going to a client. उसके सामने बैठा, तो यही बात जो सीखी आपसे, उसी को बोल दिया। ये हो गया एक टाइप का इम्प्लीमेंटेशन। तो दूसरा हो गया क्या, मैं किताब थोड़ा जो लिख रहा हूँ उसमें कुछ पंक्तियाँ, कुछ मतलब लाइन्स डाल दिए। तो ये एक चीज होता है जो मतलब कभी कभी होता है, कभी कभी टाइम भी शॉर्ट हो जाता है, मिलता नहीं। तो मेरा मतलब मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि ये जो प्रोक्रेस्टिनेशन से एक्शन टेकिंग का जो स्विचिंग है ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब वो जो क्या बोलते हैं रेजियस एज की जैसा है। अगर लो तो तुरंत ले लो, वरना वो माइंड से हट जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि आपके साथ ये जो एसोसिएशन है ना, तो जो मतलब हम क्या है, मैं क्या हूँ, मैं यहाँ पे मतलब जो लोगों से मिलता हूँ उन लोगों का मेंटालिटी अलग होता है। तो मैं सोच रहा हूँ कि अगर ऐसा कुछ मास्टरमाइंड या आप लोगों के साथ एसोसिएशन होने से ऐसा कुछ है आपके पास, जो मतलब कुछ ग्रुप्स हैं जो उसी लेवल के सोच में पड़े हों, तो अच्छा होता। तो रुक जाओ, थमो आशुतोष सर, रुको, मैं बताता हूँ, अभी रुको। ये जितनी बातें आपने करी अभी, ये सारी आपकी मनोवैज्ञानिक नाटक है। हेलो, ये जितनी बातें आपने करी,
ये सिर्फ आपकी मनोवैज्ञानिक नाटक है। इट्स वन काइंड ऑफ पैटर्न विच इज रिफ्लेक्शन ऑफ योर सराउंड। ठीक है, ये मनोवैज्ञानिक नाटक है। इट हैज नो वैल्यू, इट हैज नथिंग। आपने सारी बातें जो गढ़ी ये कुछ नहीं था, ये बस पानी का बुलबुला था जिसका कोई औकात नहीं है। बस आप समझ जाओ कि मैंने आपको क्या बोला है। इतने देर में आपने जितने कहा ना वो सब कुछ नहीं है, वो कुछ है ही नहीं, वो सिर्फ आपके दिमाग का बकर बकर है। वो कुछ नहीं था, वो सिर्फ आपके पास जो ना मतलब कहीं से कुछ मिल गया तो जो वो कुछ नहीं था, वो कुछ नहीं था। ठीक है ना। जब आप अपनी करंट रियलिटी को देखते हो ना और जब अपने ओरिजिनलिटी के साथ कनेक्ट हो जाते हो ना तो इस तरह की बातें अपने आप रुको ना। 5 कप चाय जो पिया वो नहीं पियोगे, जो बातें करी वो नहीं करोगे। जब वो नॉनसेंस होगा ही नहीं, मतलब मैं क्या बोलता हूं, जब सेशन स्टार्ट किया था तो मैं बोला था यू आर विथ योर हाई प्रायोरिटी एक्शन। आप कभी अपने जान के गलत नहीं करते हो, आप अपना जान के बेस्ट करते हो। मैंने ये पहले सेशन में बताया था, सबसे पहला मेरा यही बात था। तो आपने क्या किया, लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन किया। अभी आपने जितनी बातें करी हैं, जो भी आपने चाय पिया या जो भी आपने किया, वो सारा लो प्रायोरिटी डिस्ट्रैक्शन था। उसका आपको पता है कि वो चाय आपको कोई फायदा नहीं दिया, वो बस एक आदत था, वो आपने किया, वो आपको कोई बेनिफिट नहीं दिया। प्रॉफिट एंड लॉस का कोई अकाउंट यहाँ पे नहीं है, आपका कोई अकाउंटेंट कुछ नहीं हिसाब देख रहा है। तो यहाँ पर मेन चीज है कि जब आप अकाउंटेबल हो जाते हो, जब आप फोकस हो जाते हो किसी चीज को जब करना होता है, तो वही सब चीज है ना। मेन चीज पे आप आए नहीं अभी तक। अभी बस वो दुनियादारी का जो है ना गिव एंड टेक, उसमें फंसे हुए हो। अभी भी आपको वही अच्छा लगेगा अपनी बेटी के लिए, अपना बहन के लिए जो एक नौकरी पेशेवर होगा, तो आपको अभी भी लगेगा बेस्ट वही है, उसी को शादी देना चाहिए बहन को या बेटी को। अभी दिमाग वही पर फिक्स है, अभी उसके ऊपर वाला या उसके बियॉन्ड वाला चीज आपको पता ही नहीं है। ठीक है ना। अभी भी आपको अगर कोई अपना बेटी देना चाहेगा, अगर मान लो आप एक शादी करने के योग्य हो, तो आप यही सोचोगे मैं तो यार आराम से 1.5 लाख रुपया महीने का निकाल रहा हूँ, 2 लाख रुपया मेरे पास आ जा रहा है इंसेंटिव के साथ, अब मुझको कौन बोलेगा कि मैं तेरे को बेटी नहीं दूंगा। ठीक है ना। मैं तो गाड़ी मेंटेन कर रहा हूँ, घर है, लोन्स मिल रहे हैं मुझे, ये भी सीटी है। आपको तो अपना है होता ना। गणेश जी और कार्तिक जी में कॉम्पिटिशन हुआ था, क्योंकि कार्तिक जी भी भगवान थे, बुद्धिमान थे, बावजूद इसके उसके पास मोर था, तो वो मोर का भान था। आदमी आता है ना तो वो नंगा भी आता है और मासूम होके भी आता है। वो आते वक्त कुछ नहीं होता है, लेकिन जाते वक्त वो कोई मजिस्ट्रेट होता है या कोई डॉक्टर होता है या कोई वकील होता है या कोई मैनेजर होता है, कोई जीएम होता है, कोई रुतबेदार होता है। ठीक है ना। जब जाता है तो वो कुछ होके जाता है। ठीक है ना। बस गाड़ी वहीं फंसती है। तो वो सारी चीजें अलाइन हो जाएंगी। हमारा टॉपिक ये है कि प्रेजेंट रियलिटी टू ओरिजिनलिटी। हमारा टॉपिक ही नहीं है कि करंट स्टेट टू डिजायर स्टेट। आज के डेट में जितने भी मेंटर्स हैं वो आपको एक ही चीज पे ड्राइव कर रहे हैं, योर करंट इज दिस, है ना, करंट स्टेट इज दिस एंड योर डिजायर स्टेट इज दिस। और जब डिजायर की बात आती है तो एक ही चीज निकल के सामने आता है, व्हाट्स योर ड्रीम, आपका सपना क्या है। डिजायर का कोई आपके पास दूसरा मीनिंग ही नहीं है, डिजायर सिर्फ आपका सपना ही है। आप अपने सपने को सच करने को अपने डिजायर को सच करना मानते हो, डिजायर को मतलब अलाइन करके रखे हो। यानी इतना ज्यादा रॉन्ग कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया गया है ना कि आप उसके बोलते हैं ना कि मानव का दिमाग, इंसान का दिमाग ऑप्शन में सोचता है। आपके सामने ऑप्शन ही है ड्रीम, आपके सामने दूसरा ऑप्शन नहीं डाला है। कौन बनेगा करोड़पति में 4 ही ऑप्शन है, आपको 4 ही ऑप्शन के अंदर में सोचना है। इसीलिए लोग आज तक कौन बनेगा करोड़पति देख रहे हैं। ठीक है ना। आपका दिमाग भी पैटर्न में सोचता है। आपको ऑप्शन दे दिया, आप ऑप्शन में सोचोगे, आप ऑप्शन के परे जाके सोचते ही नहीं हो। जब सोचते नहीं हो तो जाहिर बात है फिर खत्म हो गया कहानी। थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, है ना, प्री फ्रेमिंग, ये सारी बातें आपके पास है ही नहीं। जब प्री फ्रेमिंग आप कर नहीं सकते हो, थिंक आउट ऑफ द बॉक्स कर ही नहीं सकते हो, तो फिर एवरेज में ही हो और एवरेज में ही रहना है। उसके आगे का कोई प्लानिंग ही नहीं है। वो 15 लाख, 20 लाख, 30 लाख, हार्डली 40 लाख रुपया साल का बस बहुत है। उतना भी आ गया तो बहुत है। आपको लगा लाइफ सेट है और क्या करना क्या है, वही तो खाना पीना सोना बच्चे पैदा करना, ये 4 काम में तो लाइफ तो स्क्वायर अप हो गया और क्या। तो मेन चीज अलाइन नहीं हुआ। अभी भी आपको कहीं से कोई कॉन्सेप्ट मिला बुक्स लिखने का, आपको कुछ हायरार्की मिल गया, कुछ शेड्यूल दे दिया, जैसे कि मैं बोला कि मैं आपको 1 साल में 1 करोड़, दूसरे साल में 3 करोड़, 5वें साल में आपका पूरा ब्रांड इकोसिस्टम खड़ा कर दूंगा। तो मैं आपको दूंगा एक हायरार्की दूंगा, एक चेकलिस्ट दूंगा। उस चेकलिस्ट में आप हर चीज पुट करोगे और आंसर निकालोगे। दूसरा से उसमें किताब बनाने का एक चेकलिस्ट दे दिया, ये बात यहाँ से उठाओ, ये बात वहां से इंस्पायर होगा, ये बात वहां से, ये इसको फॉलो करो, इसको फॉलो करो, अपना तुम्हारा नीड्स है, ये वो है ना। और आपने बस उस सबको एमालगेट करना शुरू कर दिया, लेकिन वो सिर्फ अपना मन का तलब पूरा कर रहे हो आप। एग्जैक्टली वो किसका प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है इसका कोई ये नहीं है कि एग्जैक्टली मेरा ये पार्टिकुलर पैरासोना है, ये इसको जाकर के हिट करेगा और उसके लाइफ को पूरा ट्रांसफॉर्म कर देगा। आपके पास वो नजरिया होना मांगता है।
आपने अगर इस नजरिया को अलाइन सबसे पहले किया, उसके बाद बुक्स लिखने का पहला क ख ग ABCD लिखना शुरू किया, तब तो बात वंडरफुल है। अगर ऐसा नहीं सोचा आपने कि नहीं मेरा बुक्स है वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट का है, वो इस एज ग्रुप को या फिर इस कैटेगरी को तुरंत हिट करेगा और हिट करके उसको ट्रांसफॉर्म या फिर उसको चेंज कर देगा, उसको वहां से जो है ना उसका ट्रबल सॉल्व कर देगा। अगर आपने ये सोच के अपना बुक्स का लिखना शुरू किया है, मतलब आप ओके हो, और आप बता सकते हो कि आप किस लेवल पे हो अभी। आपने कौन से प्रॉब्लम का सोल्यूशन दिया है अपने बुक्स में, ये बहुत मैटर करता है। और वो किसको, क्योंकि आपका बुक सबको हिट नहीं करने वाला है। 9 साल से 8 साल से लेकर के 80-90 साल तक के बुजुर्ग में किसको हिट करने वाला है, वो कौन है, वो कोई नेटवर्क मार्केटर है या फिर कोई इंश्योरेंस वाला है या फिर कोई मतलब राइटर पोइटर लोग के लिए लिखा है या फिर किसी तरह का अलग अलग सेगमेंट वाले लोगों के लिए, तो कौन से एक सेगमेंट को फिर आपको टच करना है, उतने ही से आपका काम बनेगा। उस एरिया में वो आपका पूरा सुपर हिट हो जाना चाहिए। अगर आपने उस एरिया में लोगों को सुपर हिट करा दिया आपके तो बुक्स, तो उसके लिए भी आपका ब्रांड चाहिए, आपका फेस पता चलना चाहिए लोगों को कि एक फेस है जो कुछ कर रहा है। अभी आपको टोटल अपना जो है ना सोशल मीडिया ब्रांडिंग पे फोकस करना है। इस तरह की चीजें देखने में आपको मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग है सारा कुछ आपको, क्योंकि बहुत इजी हो गया ना। सबसे मजेदार बात हो गया कि आपके पाम पे है वो सारा चीज, इसीलिए आपके लिए इजी है। नहीं तो बातें अभी भी कंफ्यूजिंग ही थी, क्योंकि अब कम्युनिकेशन बढ़ गया है ना, इसलिए बहुत सारी चीज बहुत अच्छी है, अभी बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, तो सोशल मीडिया कंटेंट के ऊपर ज्यादा फोकस करना है, वो मैं बताता हूँ यहाँ पे। मैं सारा कुछ गाइडेंस दूंगा, हर एक चीज का एक एक तरीका है ना। वो सब कुछ आपको मिलता जाएगा बकायदा, आप खाली सिस्टम में बने तो हर चीज मिल जाएगा। हमारे यहाँ एक सिस्टम है जिसमें हम लोग बोलते हैं कि आप जब हमारे तरफ आते हो इसका मतलब है कि आपको अफर्म करना चाहिए 169, ठीक है ना। 1 फॉर स्टार्ट योर न्यू इनिंग, 6 फॉर हजारों में पहचाने जाने वाला जो रुतबा है ना, वो भीड़ में पहचाने जाने, वो 6 उसके लिए यूज करते हैं। 9 का मतलब है क्लाउड 9। आप जहां रहो, मंदिर के दरवाजे पे रहो या फिर आप परिवार के साथ रहो, पार्क में रहो, सिनेमा हॉल में रहो या फिर दारू के अड्डे पे रहो, जहां भी आपका एक ही उद्देश्य है कि मेरे अंदर में खुशी और मेरे चारों तरफ खुशहाली होनी चाहिए। तो ये बातें क्लियर कट मैसेज है। तो क्लाउड 9 उसके लिए, तो 169 अफर्म करना चाहिए। तो हमारे लिंक्स वगैरह में आपको 169 का लिंक मिल जाएगा, तो आप हमें भी पेमेंट कर सकते हो, जिससे हमारा कुछ कोर्सेस आपको बोनस के रूप में मिल जाता है और हमारा पार्टनर प्रोग्राम भी आपका अलॉट हो जाता है। तो 169 अफर्म करते हो, या फिर आप मुझे लिंक के थ्रू नहीं करते हो तो आप जाकर के किसी मंदिर में या गरीब को या बच्चों को ये 169 रुपीज अपने हाथ में ले करके आसमान की तरफ देख करके कि मैं ये 1 इस्तेमाल कर रहा हूँ स्टार्ट इन माय न्यू इनिंग, 6 इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी प्रोस्पेरिटी ग्लोरी के लिए और 9 इस्तेमाल कर रहा हूँ अपनी खुशहाली के लिए। वो आनंदमय परिस्थिति जो ब्रह्मांड का सर्वोत्तम परिस्थिति है वो मेरा हो जाए। तो ये पैसा मंदिर में दान कर दो, बच्चों में खिला दो, गरीब में बांट दो। तो ये पैसे अगर आप बांट देते हो तो ये आपका रास्ता खुल जाता है सक्सेस के लिए, क्योंकि अभी तक आपने बहुत सारे पैसे यूज किए हैं लेकिन ये अफर्म कभी नहीं किया है ना। जैसे बोलते हैं ना, पुष्पम समर्पयामि, जलम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि, है ना। हम जब यज्ञ आहुति देते हैं या पूजा अनुष्ठान करते हैं तो ये करते हैं, आयोजन करते हैं ना, तो हम समर्पयामी करते हैं। तो अभी आपने अपने सक्सेस के लिए समर्पयामी नहीं किया है, आह्वान नहीं किया है। क्योंकि आप अगर गीता का अगर अध्याय याद है तो गीता का तीसरा अध्याय में कर्मा को लेकर के जानकारी है, ठीक है ना, कि कर्म क्या है। तो कर्मा की जानकारी को जब आप पढ़ते हो तो पता चलता है कि कोई भी कर्म आप जब करते हो ना तो दैट इक्विवेलेंट टू यज्ञ, आहुति। तो यज्ञ का तैयारी आप बिना नहाए धोए या बिना स्वस्थ कपड़ा पहने या फिर हर तरह का साफ सफाइयत के साथ करते हो, ठीक है ना। तो जब आपने काम को एक यज्ञ के काम के इक्विवेलेंट देखते हो ना तो फिर आपका ग्रोथ निश्चित है। आपका पायसनेस, आपका इनोसेंस ही हर वक्त काम करता है। लोगों को लगता है कि नहीं छल बल कर तब आगे चल, ऐसा नहीं है। छल बल कर तब आगे चल जो है ना, ये नॉनसेंस है। बट क्योंकि लोग बोलते आए हैं तो आपके पैटर्न में ये बैठ गया है। काम जब भी करता है तो इनोसेंस और ऑथेंटिसिटी ही काम करता है, सिंपल बात है। तो जब आप काम करते हो तो अगर उसको यज्ञ के साथ इक्विवेलेंट करते हो तो हम बताते हैं, सबका तरीका है ना। एग्जैक्टली आप जब उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करते हो ना तो आप अलाइन हो जाते हो। और एटम्स का न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अगर आपको लॉजिक पता है ना, तो मान लो इस प्लैनेट में आपने एक एटम रख दिया और उसी का कुछ सब कॉन्टिनेंट लेके दूसरे मंगल ग्रह पे रख दिया ना, अगर यहाँ पे वो वाइब्रेट करेगा तो मंगल ग्रह पे वो भी वाइब्रेट करेगा। तो उसकी इतनी ताकत होती है, ठीक है ना। जैसे जुड़वा बच्चे का आपने कॉन्सेप्ट सुना होगा कि बच्चा यहाँ होता है। हाँ, यही सर जो आप बोल रहे थे ना, हम लोग मतलब यहाँ पे आए हैं, ऐसा कोई मतलब ये ऐसे ही नहीं हो गया। कोई एक यूनिवर्स का मैसेज है जिसकी वजह से मैं यहाँ इस प्रोग्राम में हूँ या आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा हूँ। एंड दैट यू हैव शेयर्ड प्रीवियसली, थिंक
ठीक है ना। तो हर एक बोलते ना, उनकी मर्जी के बिना एक पत्ता नहीं हिलता है, तो ये बात है। आप कहीं ना कहीं किसी चीज को तलाश रहे थे, दैट्स व्हाई हमारी आपकी, हाँ, आपकी तलाश जो है ना वो यहाँ के रुकती है। और ऐसा बहुत सारे लोग अब बोल चुके हैं, तो अब हम लोग को भी ये बात लगने लगा है कि वाकई में वी आर अलाइनिंग समथिंग जो लोगों की जरूरत है। जब लोग बोलते हैं तब मुझे पता चलता है, ऐसे हमें क्या पता चलेगा, हम लोग भी इतने कोई पंडित थोड़ी ना है, कोई ऐसा कोई पुरखा हमारा कोई ऐसा नहीं है जिसका नींव जो है ना बरगद के पेड़ के पास है, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग एक ऑर्डिनरी है, मांस मच्छी खाने वाले परिवार है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऑर्डिनरी परिवार है, ऐसा कोई स्पिरिचुअल परिवार नहीं है। लेकिन हाँ, कभी भी बहुत रेस्पेक्ट किए हैं, क्योंकि मैं बोला ना कि मेरा बच्चा केदार बद्री भी देखा है, मेरा बच्चा हाजी अली भी देखा है, मेरा बच्चा मुंबा देवी भी देखा है, मेरा बच्चा हैदराबाद का पासपोर्ट मंदिर भी देखा है, कि तिरुपति बालाजी भी देखा है, कि पूरी जगन्नाथ भी देखा है, कि खडगा माँ तारनी भी देखा है, ठीक है ना, कि सामलेश्वरी मंदिर भी देखा है। तो हम लोग समलेश्वरी मंदिर भी जाते हैं, घटगा माँ तारनी भी जाते हैं, पूरी जगन्नाथ भी जाते हैं, भुवनेश्वर भी जाते हैं, लिंगराज मंदिर भी जाते हैं, मतलब हर जगह वो हमने दस्तक दे दिया है। क्या फिल्म सिटी में बताया हर चीज, गोल्डन टेम्पल भी अमृतसर, बाघा बॉर्डर क्या है, गोल्डन टेम्पल क्या है, एक एक चीज हमने कवर किया है। क्या जलियांवाला बाग है, सब कुछ जानते हैं। क्या नालंदा विश्वविद्यालय है, हर एक चीज बच्चों ने अपने हाथ से टच किया है। क्या कलकत्ता है, क्या दिल्ली है, क्या मुंबई है, बच्चे सभी जान रहे हैं आंखों के सामने। क्या अक्षरधाम मंदिर है, तो क्या साइंस सिटी है, वॉक्स म्यूजियम है, हर चीज कवर किया है। तो वो सब चीज जो है ना एक अलग तरह का पावर देता है आपके अंदर। आपको पता है कि आप उसको फिजिकली जानते हो, टच किए हो, तो है हर वक्त। सर एक लिंक शेयर कर रहा हूं हमारे 3 डेज के प्रोग्राम का, क्या आप उसे एबल करना चाहेंगे? हाँ जरूर। तो वो मैं आपको दे रहा हूं, आप एबल कर लें। और वो 169 भी अफर्म कर लें। अगर आप हमारे साथ करना चाहते हैं तो भी अफर्म कर लें, हमारा पार्टनर प्रोग्राम मिल जाएगा। अगर नहीं तो फिर आप मंदिरों में भी दान कर सकते हैं, बच्चों को भी खिला सकते हैं। जरूर ठीक है, जरूर सर, मैं कर लूंगा। लेकिन अभी मेरे पास मतलब कल कैश डाल के ही आपको अकाउंट ट्रांसफर कराऊंगा। अभी मैं लिंक दे रहा हूँ, आपके व्हाट्सएप में डाल दूंगा, ठीक है ना। अभी मुझे आपसे जो मेन बात बोलना वो ये है ना कि आपको अभी तुरंत ही कार में बैठे बैठे एक फेस अपना सेल्फी कैमरा से आपको अपना वीडियो शूट करना है। आप कौन हो, कहाँ से हो, क्या करते हो, बताते हुए कि अभी आप एक राइटिंग भी कर रहे हो बुक्स का, बावजूद इसके कि आप जो जॉब में हो वो भी बताते हुए आपको बताना है आप कौन हो, और आपने क्या यहाँ पे इतनी देर में क्या देखा, क्या होते हुए देखा, और आपने किस तरह से इसको अपने अंदर पोएट्री किया है। ये 1.5-2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट जो भी आप बोल सकते हो ना, इसको वापस से आपको मेरे जो ना फोन पे आपको सेंड करना है, ये वीडियो जो मैं आपको एडिट करके वापस सेंड करूंगा, है ना। और ये ट्रस्ट पायलट जो है ना, ये मैं दे दिया हूँ आपको, आप एक कर लो। और ये मैंने यहाँ पे आपको लिंक दिया है, इसमें आपको 5 स्टार रेटिंग डाल के अपनी जो लर्निंग है वो आपको यहाँ शेयर करनी है। ट्रस्ट पायलट ये आप गाड़ी किनारे करके आप कर लो, 1 मिनट लगेगा। बेलिसा जी, आप भी अगर करना चाहें तो प्लीज हमें बहुत खुशी होगी, क्योंकि आपसे तो कोई बात नहीं हो पा रही है, आप बात नहीं करना चाह रहे हो, बट आप हमारे साथ हो, इस बात की खुशी है हमें। और हमें उम्मीद भी है कि आपको जो है ना हमने जो भी यहाँ शेयर किया है उसको आपने बहुत पॉजिटिवली लिया होगा, और आपको लग रहा होगा कि आपका समय बर्बाद नहीं हो रहा है। तो मुझे इस बात का रहेगा हर वक्त। तो प्लीज आप भी हमारा ट्रस्ट पायलट को यूज करें और हमें 5 स्टार रेटिंग दें, है ना। और अगर आप भी बोलेंगी तो हम आपको भी शेयर कर देंगे हमारा वो अफर्म जो करना है ना 169, और जो हमारा 3 दिन का जो 100x प्रोग्राम आ रहा है ना। अच्छा, कल हमारा जो प्रोग्राम है ना उसका भी शेड्यूल आपको मिल जाएगा। कल का हमारा प्रोग्राम भी शायद 12:30 बजे से है ना, मैं 1 सेकंड देख के बताता हूँ। रात में आप तो कितना 10 बजे तक फ्री हो जाएंगे ना? हाँ हाँ, अभी तो आए। तो फिर रात में हम लोग बात कर लेंगे एक साथ। आप ये बार खाली ये कर ले, है ना। और ट्रस्ट पायलट पे खाली हमें रेटिंग कर दे प्लीज। और हमारा कल का प्रोग्राम 12:30 बजे चालू होगा कल, मतलब मॉर्निंग को, जो आफ्टरनून को। हाँ, कल आफ्टरनून में 12:30 बजे चालू होगा। तो आपके जो भी एजेंट्स हैं जिनको लगता है कि ग्रोथ चाहिए लाइफ में, तो उनको जरूर एसोसिएट करें, क्योंकि ये जो लर्निंग है ना बहुत अच्छी लर्निंग है और सबके काम में आने वाली है। क्योंकि जो जहां है ना, अगर उसने पोजिशनिंग को सही कर लेता है, मतलब वो अच्छा ग्रो करेगा। तो प्लीज आप दूसरों के साथ भी शेयर करें, जिनको भी भाई बहन को बताना हो, दोस्त यार को बताना हो, अपने कलीग्स, अपने सबको, आप प्लीज एसोसिएट करें। क्योंकि हम अभी मार्केटिंग नहीं कर रहे हैं, दैट्स व्हाई जो हम जो भी लोग हमारे साथ जुड़ते हैं उन्हीं को बोल देते हैं प्लीज आप अपने लेवल पे देख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि जो आप चाहते हो ना वही आपको बांटना भी पड़ेगा।
जब दिक्कत क्या है, मैं बहुत बड़ा बात बोलने वाला हूँ, शायद आप समझ रहे होंगे कि आप तो चाहते हैं कि आप कामयाब हो जाएं, लेकिन आपके अंदर ये बात नहीं है ना कि मेरा पड़ोसी कामयाब हो जाए, मेरा भाई कामयाब हो जाए। और ये वाला जो सराउंड की वजह से आया है ना, ये बहुत दुखदाई चीज है सर। ये चीज से ओवरकम कर जाने में ही भलाई है कि हम अपने फायदे से पहले, अपने मुंह में निवाला डालने से पहले, अपने 4 लोगों के मुंह में निवाला डालने का सोचेंगे ना जब, तो हमारा भगवान हमें कभी भूखा नहीं सुलाएगा। तो ये बहुत बड़ा बात है सर, ठीक है ना? यही तो जो इस आप बात अलग बोल रहे हो, यही चीज, ये दिस मेक्स यू डिफरेंट फ्रॉम अदर्स. यू आर टेलिंग दैट यू मस्ट गिव अदर्स मोर before consuming, creating more. That's what Badana told before, and I accept that. Thank you, sir, for and sorry for now. I have to attend a client. Thank you for the session. I'm just leaving, sir.